کے لیے تو ہماری ارتھ بہت پیچھے چل رہی ہے. تو یہ جاہل جو ہے نا اس چیز کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ ان لوگوں کو جو ہے مدرسے میں پہلی بات تو سائنس کی تعلیم دی نہیں جاتی, اور جتنی دی جاتی ہے وہ بھی ٹانگ توڑنے کی دی جاتی ہے کہ سائنس بھلے ہی کہتا رہے کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے, سن روٹیٹ کر رہا ہے, تم نے نہیں ماننا زمین روٹیٹ کرنی ہے, تم نے یہی ماننا ہے کہ ارتھ جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہے, وہ نہیں اراؤنڈ وہ نہیں روٹیٹ کرتی, وہ نہیں گھومتے, وہ ہلتی نہیں ہے. اللہ خود ان کا قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو تھام لیا ہے تاکہ وہ گردش نہ کریں, ہلے نہیں. ارے بھائی ایسے جاہل قرآن کے ماننے والوں اور ایسے جاہل مدرسہ چھاپو, تم لوگ کس طریقے سے ملٹی ورس اور پلانٹ کی بات کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اللہ اور تمہارے محمد دونوں کو ہی زمین, آسمان, چاند اور ستارے کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اگر آسمان کے بارے میں کچھ پتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک زمین ہے چپٹی سی چکور, ایک ڈبا سا ہے, فلیٹ ایک تختہ ہے جس کو بچھا رکھا ہے, جس پہ تم گھوم رہے ہو, اور اس کے اوپر ایک چھت ہے, وہ آسمان ہے جو کہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو تمہارے لیے جو ہے نا مضبوط, ایک دم مضبوط اسٹرانگ چھت بنایا اللہ نے آسمان کو. روزانہ ان کے اندر سے جو ہے نا جو بادل ہیں جن کو یہ آسمان سمجھتے ہیں, ان کے اندر سے روزانہ ہوائی جہاز نکل جاتے ہیں, ان کی مضبوط چھت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور اگر یہ اس یونیورس کو چھت مانتے ہیں, اس یونیورس کو یہ آسمان مانتے ہیں, تو ان گدھوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یونیورس میں جہاں تک آپ ٹریول کرو گے وہ خالی ہے, کھلا ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں آسمان نام کی. یہ جاہل لوگ آ کر کے مطلب ثابت کریں گے پلینٹ کو اور وہاں پر دجال بتائیں گے. مطلب امام صاحب ان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے. اور ایک بات بھائی ذرا ایڈ کروں, وہ یہ کہ یہ جو میراث کی بات کہتا ہے, محمد میراث میں گیا تھا اور جب اس نے لوٹ کے آیا اس نے بہت کچھ کیا ادھر, اور جب لوٹ کے آیا اس کا بستر گرم ہی تھا, مطلب یہاں پہ ٹائم بیتا ہی نہیں تھا. اگر کوئی ٹائم ٹریول کرے, ٹائم کے اسپیس کے کیا کہتے اس کو, اسپیس میں کوئی ٹریول کرے تو ادھر آپ کے ٹائم الٹا, مطلب ادھر ہی تھم کے رہے گا اور ادھر ٹائم, دنیا کا ٹائم زیادہ چلا جائے گا. اصل میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے تو اکارڈنگ ٹو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کوئی بھی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گا تو جو لائٹ آف اسپیڈ ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے, جس کو پورا میجر کرنے کے لیے ٹائم کو خود سلو ہونا پڑتا ہے. اس وجہ سے اگر محمد 7 آسمان پار کر کے بھی آئے گا, جیسا کہ آج کے مومن بتاتے ہیں کہ 7 آسمان یہ ہے وہ ہے, اگر اتنا ڈسٹینس کر کے بھی آئے گا کہ بستر اس کا گرم رہے تو اتنے میں پرتھوی پر منیمم بلین آف ایئرس گزر جانے چاہیے تھے. اور یہ لوگ جو ہے نا, یہ اتنی جاہل قوم, یہ جو ہے وہ بھارتی سنسکرتی کا مذاق اڑاتی ہے. میں یہاں ہندو نہیں کہہ رہا, نہ سناتن کہہ رہا ہوں, پر بھارتی سنسکرتی کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جو پوروج گزرے ہیں نا, ہمارے جو اینسیسٹر گزرے ہیں, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے اتنی سٹیک جانکاریاں دی ہے یونیورس کے بارے میں, ارتھ کے بارے میں, ٹائم کے بارے میں. تو برہم ویورت پران کے اندر جو ہے نا ایک قصہ آتا ہے ایک راجا کا, جو کہ بہت زیادہ پاورفل راجا تھا, اور اس کی ایک بیٹی تھی. وہ بیٹی اس کی بہت سندر تھی, تو اس کو اس کے لیے یوگیہ ور نہیں مل رہا. حالانکہ اسٹوری ہے, تو اس اسٹوری میں بتایا گیا کہ اس کو اس کے لیے یوگیہ ور نہیں مل رہا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اب وہ اپنے ومان میں لے کر کے اپنی بیٹی کو اور برہما جی سے جو ہے صلاح لینے کے لیے گیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں. تو جب وہ اپنے ومان میں بیٹھا اپنی بیٹی کو لے کر کے برہما جی کے پاس پہنچا, تو برہما جی کچھ کام میں بزی تھے, تو اس نے کچھ پلوں کا جو ہے ویٹ کیا اس کی بیٹے نے اور اس راجا نے برہما جی کا. جب برہما جی آئے تو آ کر کے انہوں نے اس کو بتایا, یہ کہانی لکھی ہوئی ہے باقاعدہ ہمارے پرانوں میں, کہ جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی پریشانی کیا ہے. اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یوگیہ ور نہیں مل رہا ہے, آپ دھراتل پہ مجھے ایسا کوئی یوگیہ ور بتا دیں جو اس کے لیے اچت ہو. تو برہما جی ہنسنے لگے, اور ہنس کر کے انہوں نے کہا کہ جس پرتھوی سے تو آیا ہے, جس پرتھوی کو تو جانتا تھا, وہ پوری طریقے سے بدل چکی ہے. جتنی دیر تو نے میرا یہاں انتظار کیا ہے اتنی دیر میں وہاں 11.5 لاکھ سال گزر چکے ہیں پرتھوی پر. تو یہ تھیوری جو ہے وہ ٹائم ڈائلیشن کو درساتی ہے کہ برہما جس لوک میں ہے نا, وہاں اگر آپ چلے جائیں گے تو ارتھ پر لاکھوں سال گزر جائیں گے. یہ اس سنسکرتی کا مذاق اڑاتے ہیں یہ مدرسہ چھاپ, جن کو یہ تک نہیں پتا کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی ہے کہ اللہ نے پہلے یونیورس بنایا یا پہلے سورج چاند ستارے بنائے ہیں. یہ جاہل ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. سمیر اور بھائی پورا اگر آپ یونیورس اور دنیا ایک ہی سمے پہ بنا ہے, مطلب 2 دن لگا دنیا میں, 2 دن لگا یونیورس میں. نہیں, 6 دن لگائے ہیں زمین کو پوری طریقے سے تیار کرنے میں, 2 دن میں پورا یونیورس 8 دن میں بنا کے تیار کر دیا. ہلو یہ ہلو یاد کرنے آئے.
भाग गया ये क्या? मैं तो बाबर गला ही आजम साफ कर रहा था। था अभी। अरे ये बाबर आजम था, ये 2-4 बॉलें टुक टुक करता फिर आउट होके चला जाता है। किधर चला गया ये? चला गया वो। चला गया हेलो यार मोमिनो, अपने हाल पे तरस खाओ और हमारी स्ट्रीम में आओ, रसूलुल्लाह को बचाओ। ये रसूलुल्लाह ने क्या गेम डाल दी यार तुम्हारी, तो इसको बचाओ, डिफेंड करो भाई। क्या हो गया तुमको? ना इंटरनेट सही है, ना उसको आप परमिशन देते हैं अपने माइक कैमरा को, ना आप कोई ढंग की गुफ्तगू करते हैं, आते हैं तो गाली गलौज करते हैं या पौन जिहाद कर देते हैं, नुन्नी दिखा देते हैं। भाई साहब ऐसे कैसे इस्लाम का दिफा होगा भाई, तो मसला हो जाएगा। जी बाबर साहब, आवाज आ रही है मेरी जी सर, आपको? क्या हाल है आपका? अरे सर मैं एकदम फर्स्ट क्लास सर, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैंने सिर्फ 2-4 एक आध बात ही ऐड करनी है। जो मैंने भी एक बात ऐड करनी है, मुझे भी एक ही बात ऐड करनी है। मेरी बात ये है कि दज्जाल कहाँ है सर? ओ सर, दज्जाल तो होगा तो नजर आएगा ना। दज्जाल, हर वो चीज दज्जाल है हम मुसलमानों के लिए जो ना नजर आए, जो कोई फलसफा पेश कर दे, जो कोई जहादी फलसफा जिससे निकल आए ताकि लोग उसके ऊपर वाह करें, वो दज्जाल है। और कौन सा दज्जाल कहाँ से लेके आना? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मसला, दोनों में फर्क क्या है। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जो इस्लाम के मुनाफी करता हो, इस्लाम के खिलाफ जाता हो, इस्लाम के खिलाफ हर्ब हो, वो दज्जाल नहीं है जनाब, वो फितना दज्जाल है। दज्जाल जो है वो अपने आप में एक शख्सियत है जिसके बारे में आपके रसूलुल्लाह ने वाजिब तौर पर बयान किया है कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, जजीरे के अंदर कैद है, और उसकी हाइट और वो सब, उसका बदन कैसा है, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, वो सब आपके रसूलुल्लाह ने बताए हैं। तो वो दज्जाल नहीं है भाई, जो आप बता रहे हैं, वो है एक्चुअली फितना दज्जाल। दज्जाल कोई और है, उस दज्जाल के बारे में पूछ रहे हैं हम। वो जो बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ किसी जजीरे में, वो कौन से जजीरे में कैद है बाबर साहब? वो तो आपके अंडरवेयर में कोई क्या चीज है ऐसी, मुझे तो वो नजर आ रहा है, हमेशा वो ही दज्जाल नजर आया। वरना जो आप बात कर रहे हैं जंजीरों में जकड़ा हुआ, वो तो किसी के अंडरवेयर में कोई चीज हो सकती है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो लोगों के अंडरवेयर में झांक झांक करके दज्जाल को देख रहे थे, तो फिर बता रहे थे दज्जाल कैसा है? और कहाँ देख रहे थे? उस वक्त तो अंडरवेयर भी इजाद नहीं हुआ था। उस वक्त हदीस में आता है क़यामत के वक्त ईसा जो है वो दज्जाल को तलाशेंगे, मतलब ईसा आके सबके अंडरवेयर के अंदर झांकेंगे। एक सेकंड इमाम साहब, ज़ाहिर है वहां से निकलेगा तो वो देखेंगे ना सब। मोमिनों का तो यही दावा है ना, हम मोमिनों का यही दावा है। बाबर साहब, आर यू कॉमेडी मी? जा सकते हैं, वो अंडरवेयर में ही हो सकती है ऐसी चीज। बाबर साहब कोई आयत सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आगे बताएं। अब इसका मतलब बता दें। इसका मतलब हमने रटी हुई हैं ये सारी आयतें ताकि मुसलमानों में हमारा मुसलमान होना रहे। मतलब का तो हमारे मेरा ख्याल बाप दादा को नहीं पता होगा। थैंक यू। अच्छा सर, तो आपके दज्जाल की वजह से पैदा हुए हैं? यही मकसद था सर आपसे इतना सब कुछ आप अपने वालिद के दज्जाल की वजह से पैदा हुए हैं? इसकी वजह से आप अपने वालिद के दज्जाल की वजह से पैदा हुए हैं? ज़ाहिर है वालिद को दज्जाल ना होता खुसरो ने कौन सा बंदे पैदा कर देने सारे। ये तो डाई का नुक्स है ना। अगर इंसान ने मोटरसाइकिल बनाए हैं 2 अरब, किसी में होगा, किसी की मोटरसाइकिल की वो उस बाइक में ये क्लेम आया कि इसके टायर नहीं है या इसके हैंडल नहीं है। वरना जिस डाई से हम लोगों को बनाया गया 10% लंगड़े लूले डुड्डे पैदा हो रहे हैं। वो डाई ठीक थी, उसमें मौजूद थी वो चीज, दज्जाल मौजूद था तो मैं पैदा हुआ ना। वरना कैसे पैदा होता? आप बताएं, आप बगैर दज्जाल के पैदा होकर दिखाते। यार बाबर भाई, आप मुर्तद हैं बाबर भाई। जो मुर्तद है उस पर खुदा की लानत, जो अब मुझे कह रहा है उस पर भी खुदा की लानत।
لیکن بھائی آپ نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کے اس کے دجال کو بھی روسٹ کر ڈالا، پتا آپ کو؟ اور ایوی لوگوں نے دجال بنا ہوا ہے. نبی نے تو ہمارے نے کہا ہی نہیں، ہمارے تو نبی بڑے اچھے تھے. لونڈیاں انہوں نے رکھی ان کی، ابراہیم لونڈیوں میں سے پیدا ہوا، کیا ہو گیا؟ ہمارے تو جو نبی تھے بغیر نکاح کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ سیکس کر لیتے تھے. ہمارے مولویوں کا دماغ خراب ہوا، ہم پر پابندیاں لگائی ہوئی. ہمارے نبی کا تو اسوہ ہی سب سے اعلیٰ تھا. دیکھیں آج کے دور میں ہمارے نبی جیسا اسوہ ہوگا تو آپ زندگی صحیح گزار سکتے ہیں. بغیر نکاح کے سیکس کریں، صحیح کوئی بات ہے ضرورت بھائی. نہیں، بچے بھی پیدا کریں. آپ کے نبی اتنے بڑے تھے کہ ارے عادل بھائی ہولڈ آن تناسل ہی دجال تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بابر بھائی آپ کنٹینیو آپ مزاج میں لے کے جا رہے ہیں بھائی. بات دیکھیں میرے نبی نے الحمدللہ محمد رسول اللہ نے بیوی سے ایک بچہ کیوں نہیں ہوا جی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا اچھا تھا تو 11 بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا کیوں؟ اچھا وہ آپ کو اصل کیا میں نا لگتا ہے؟ کبھی کبھی دیکھیں یہ میرے رب کی مرضی ہے نا. دیکھیں لونڈی میں سے بچہ کیا بغیر نکاح کے. ہم آج کے 1400 سال بعد والے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو، اس پر گواہ رہنا کہ نکاح اچھا کے مجھے بغیر بتائیں لڑکے کہ ہوتے ہیں، نکاح حضرت سے محمد لڑکیاں کا پیدا ہو رہی. مجھے بتائیں کہ حضرت محمد کا دجال کتنا بڑا تھا؟ وہ تو دیکھیں میں کون سا ان کے اوپر بیٹھا تھا. آپ بیٹھ کر دیکھ لیتے اگر وہ زندہ ہوتے تو. نہیں وہ یہی تو ساری بات ہے، وہی تو ساری بات ہے. وہ اتنا بڑا تھا نہیں دجال ان کا کہ کوئی بیٹھ سکے اس پہ. بھائی وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کا ہاتھی جتنا بڑا دجال ہو، کچھو میں جتنا بڑا دجال ہو، آپ کیا کر لو گے؟ جب کسی نے دیکھا یار نہیں یہ تو پھر بڑی تو یہ مشکلیں ہو جائیں گی نا یہاں پہ. پھر اگر اس کا ہاتھی جتنا بڑا دجال ہے. وہ تو دیکھیں اتنی عورتیں 28 عورتوں کی لی ہے سرکار نے، تو وہ ایم ہی لے لی. آپ نے نہیں لے لی. آپ کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے. آپ ادھر بیٹھے جھک مار رہے ہیں. تو نبی کا دجال الحمدللہ الحمدللہ 28 عورتوں کے لیے ہے. اور آپ میں سے کسی کی جرت ہے جو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ نہ بالکل نہیں سر، ہمارے تو اندر پھر اتنی ضرورت نہیں. ایسے ان کی عزت میں کمی کر رہے ہیں. ہمارے کچھ دوست بھائی ایسے ہیں جو اس کو غصہ مانتے ہیں. میں اسے فخر مانتا ہوں. دیکھیں ایسا نبی کسی کا تھا، کبھی ہوگا، کبھی آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. آخری نبی کا یہی مقصد تھا. کیا مقصد تھا آخری نبی کا سر؟ دیکھیں بغیر سیکس بغیر نکاح کے آپ بچے پیدا کریں، حرام کے نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ جس کے ساتھ مرضی سیکس کر سکتے ہیں پیسے دے کر. ہاں آپ اپنی ہمسائی سے اپنی کسی کو دوست بنا کر آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. یہ گناہ ہے اسلام میں. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ذاتی تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور سربراہ نے جو لونڈیوں کی لی ہے اس کے مطابق پیسے دو، جو مرضی کام ڈالو. مطلب بابر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے عشق و محبت کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ کام کرے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر پیسے ویسے دے کے کام کرے تو ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. بھائی دیکھو نا، عشق و محبت میں پیسے نوالو نہیں. ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہم نے وہی کرنا. آپ جو مرضی میرے ساتھ جو مرضی، یہ ایک قسم میں ایسے بکواس ہی سمجھتا ہوں کریے. بڑا اچھا کامیڈی چل رہا تھا، ذرا بند ہو گیا. اور سمیر بھائی آپ نے تھوڑا وہ پرائیویٹ آواز چیٹ چلی گئی. پیسے چیک دے کیا کے ہے؟ تو اس کا وہ جو حق ہے وہ تو ادا کرو. کامیڈی چل رہا ہے. ہمارے علماء کرام اس پر بولتے نہیں ہیں. بے شرم ہے، بچوں کے ساتھ لانڈے بازی کرتے ہیں. اس بات کو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جی بالکل آپ نے اپنا اب درست دیکھیں نا، فرمایا. یہ جو ہمارا مذہب ہے نا، یہ روز قیامت تک کا ہے. وہ ایک دن کا تھوڑی ہے. یہ اب ان کو بعد میوب لگتی ہے، یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. لگی تو لگتی رہے. کھلی بات جو ہوتی ہے نا، جو سماج کے لیے اچھی ہوتی ہے، اسے کرنا چاہیے. اچھا آپ کا تعلق جو ہے نا وہ پاک جگہ سے ہے کیا بابر صاحب؟ نہیں ہاں وہیں سے ہے بھائی. اچھا پاک جگہ سے. اچھا باقی ساری دنیا ناپاک ہے کیا؟ ہم کون سا باقی ساری دنیا کیا ناپاک ہے فرما کیا رہے ہیں؟ دنیا میں؟ نہیں وہ تو نام ہے نا، جیسے نیم ہے. جیسے میرا نام بابر ہے، آپ کا اصغر بھی ہو سکتا ہے، ممتاز بھی ہو سکتا ہے، بھگوان داس بھی ہو سکتا ہے. نیم اتنے
अच्छा अच्छा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान का, बस ऐसे नाम रख दिया भाई पाकिस्तान। ये ऐसे ही होता है ना। देखिए जब पाकिस्तान नहीं था, आप आर्कियोलॉजी कल स्टडी देखें तो वो कोई नाम ही नहीं था। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम लोगों ने दिया हुआ था। कौन सा हिंदुस्तान किसी का बेटा था जिसका नाम हिंदुस्तान रख दिया या इंडिया रख दिया? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो यार अब बड़े मजे के आदमी है, लेकिन मुझे बस तकलीफ ये है बाबर भाई, मुझे बस तकलीफ ये है कि बातें तो आप बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में सच नहीं आप बोल रहे। ईंट को ईंट क्यों कहते हैं? किसी आपका सच्ची नेटवर्क बात इशू ही हो रहा है है, भाई। देखे अगर किसी को समझ नहीं किसी बात की, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है बाबर भाई, आपकी आवाज कट रही है, आप अपना नेट दुरुस्त करें। जी बाबर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? इनका नेट का शायद इशू है। तो खैर बाबर साहब तो जो है हमारे ख्यालात के आदमी हैं, हालांकि ये इजहार नहीं कर रहे, इकरार नहीं कर रहा, तो वो एक अलग चीज है, वो जी हम जी समझ सकते हैं। बाकी आप बड़े अच्छे मैं आदमी हैं इकरार बाबर करता भाई। हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। आप मुझसे जो मर्जी आयत कुरान सुने, क्या हो गया? मुनाफिक मुसलमान हैं आप, मुनाफिक इसका वो मतलब। होता है भाई जो मुंह पे कुछ कर। देखे मैंने कोई भी एविडेंस दिया है, कोई भी बात की है, अगर उसमें रसूल से नहीं है तो मैं मुनाफिक हूँ। अगर वो लेकिन उसी को तो उसमें मैंने मुनाफिक कहा जाता है इस्लाम में। सुनिए बाबर भाई, नहीं वो तो इस्लाम में देखे कोई मुनाफिक जाहल है। उसी को देख कहा दे, जाता है जो मेरी सच बात बोले। भाई, मेरी बात सुनिए ना, सुनिए, हाँ जी जो सर सच नहीं बोले। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं इस्लाम को आला तरीन दीन समझता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला तरीन दरसगाह का उस्ताद समझता हूँ, नबी समझता हूँ कि उन्होंने हमें जिंदा रहने के लिए ऐसे कायद पेश किए हैं लेकिन आप अल्लाह की तरफ से। मौलवियों की जानिब से होने वाली लौंडेबाजी को तो गलत समझते हैं, लेकिन यही लौंडेबाजी तो नबी ने भी की है। देखिए आप किसी बच्चे, मेरा बेटा है या आपका बेटा 8 साल का होगा, उसके ऊपर मेरे जितना बंदा 40 साल का चढ़ेगा, आप उसे अच्छा समझेंगे भाई? लेकिन नबी लॉजिकल अगर बात। यही काम रसूलुल्लाह करे, भी तो यही अगर किया यही है ना, काम नबी करे तो रसूलुल्लाह फिर भी तो ये काम नहीं है ना। रसूलुल्लाह ने कोई लौंडेबाजी नहीं की, वो तो मैं आपको बच्चीबाजी बताता करते हूँ थे। मैं आपको बताता हूँ और अगर की हो तो बच्चेबाजी, नहीं लौंडेबाजी भी करते थे बच्चीबाजी बाबर भाई करते वो। थे। नहीं 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 नहीं, भाई वो लौंडेबाजी का उनका कोई लौंडेबाजी सबूत है तो बच्चे दिखा दे भाई, दिखा दे। तेरे ना की थी अच्छा, इल्जाम लगाई रहा हमारे सच्चे नबी पर। हसन और हुसैन के मुंह में अपनी जबान डाली वो तो किसके लिए यानी इसे मैं इसी मेरी को बात लौंडेबाजी बोलते हैं भाई, इसी को लौंडेबाजी भाई बोलते हैं। भाई आप बोलते होंगे हम रहते हैं पाकिस्तान अच्छा, इंडिया में, आपके वो बच्चे के रहते मुंह थे में वो अरबों में। जबान डाले, आप क्या बोलेंगे? किस कर रहे हैं, लौंडेबाजी कर भाई रहा है? भाई देखे मैं इसे कल्चरल इशू मानता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं सोचता, इसे मैं कल्चरल इशू मानता हूँ। उस कल्चर में था, हमारे कल्चर में नहीं। अरे जलेबी जलेबी तो होगी अगर आज तब कोई भाई, मौलवी अगर एक आज कोई कल्चर नहीं। मौलवी देखो बच्चे के मुंह स्पेनिश में कल्चर, मेरी बात तो भाई मेरी आज कोई बात सुन ले, आप मौलवी इसे अगर रद्द बच्चे के करके मुंह में दिखाएं। जबान डाले तो स्पेनिश ये कल्चर इस्लामी क्या काम होगा, गैर इंडियन इस्लामी काम पाकिस्तानी होगा? कल्चर से ज्यादा कल्चर नहीं है अरे मैं कह रहा हूँ आज कोई पाकिस्तान में क्या? मौलवी बच्चे के मुंह में दोबारा जबान बात डाले करें। तो ये इस्लामी काम है या गैर इस्लामी काम है? ओ भाई वो तो ऐसे जाहल हैं। हमारे नबी की इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है, बगैर निकाह के औरत से बच्चा पैदा करो, वो आप उसको एक नहीं बात पे मानते। अटकते आप हैं ना, इस अभी बातों में लौंडेबाजी पे उनको आ जाइए, अकल आपका वाला वीक समझते हो, पॉइंट है, तो मुझे पता गधे चल गया। मिलते हैं। नहीं वो आप अभी वो ठीक है, वो बहुत चले वीक आप पॉइंट है वो। लौंडेबाजी पे आ जाए, दिखाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई हदीस। अपने भाई नवासों मैं को क्या जबाने हदीस चटाई, दिखाएं, कुरान में दिखाएं लौंडेबाजी का कहाँ की तरह अपने नवासों को जबाने चटाई साधु है। ने या नहीं? अपने मैं नवासों को दिखा जबाने दूं। बिल्कुल चटाएं, आप सच कह रहे हैं। तो बस लौंडेबाजी हो बिल्कुल गई, हदीस लौंडेबाज आदमी मुबारक को। में मौजूद है। चलो तो बस फ्रेंड्स किसकी लौंडेबाज हदीस आदमी दिखाता हूँ। लौंडेबाजी अच्छा इसी को आप कहते हैं। स्क्रीन शेयर कर दे। वो यार एमी ना वो बहुतान लगाई हो, कोई बात लॉजिकल करो भाई। मैं तो समझ रहा था आप बड़े लॉजिकल जबान आदमी डालेगा तो मैं उसे किस इमाम करना बोलूंगा, बुखारी हदीस लौंडेबाजी बोलूंगा? लाए। हैं। जी मैं शेयर करता हूँ। मैं पहले इनको मैं एक उसे दिखा गलत दूं नहीं कह रहा हदीस। भाई। भाई छोटे देखिए छोटे एक हदीस आपको दिखा रहा भाई हूँ मैं मैं। मान रहा हूँ, मैंने बाबर उसे भाई, सुनी है, देखी है। बाबर भाई हदीस देख लें मैं आप। उसे आपने इनकार नहीं हदीस कर रहा मांगी, भाई। बाबर मैं भाई तो आपने हदीस आप मांगी, मैं बेशक आपको पेश हदीस कर दिखा दे। रहा हूँ। मैं अरे भाई महाराज, मैं उसे इनकार ही मेरे नहीं कर रहा। मेरे अरे जनाब रुके। आपने हदीस मांगी, मैं आपके सामने हदीस पेश कर। मेरी आवाज आ रही है इमाम साहब अली भाई? जी सर आ रही है बिल्कुल। चलें जी, मैं अब अबू दाऊद की हदीस दे देता हूँ इनको। ये देखिए अबू दाऊद की हदीस है 5224। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट लिफ्ट अप ही शर्ट, सो ही द मैन हग्ड हिम एंड किस हिज टोर्सो,
from his belly button to his armpits. एक आदमी आया रसूलुल्लाह के पास और आकर के कहने लगा, अल्लाह का रसूल, मैं आपको चूमना चाटना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने अपना कुर्ता ऊपर उठा दिया ताकि वो आदमी उनको उनके टोर्सो से लेकर के उनके आर्म पिट्स तक चूम चाट ले पूरा। जब वो चूम चाट लिया तो उसने पूछा, अल्लाह के रसूल कहाँ तक जाऊं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तक नमकीन पानी ना आए। तो भैया रसूलुल्लाह इस आदमी के साथ क्या कर रहे थे भाई साहब? इसके अलावा मुस्नद अहमद की हदीस है। इनसे पूछ लें इनको पता है टॉर्सो कहते हैं किसे? जी जी, वो भी पूछ लेंगे। इसके अलावा मुस्नद अहमद की हदीस है, ये भी चेक कर लें इसमें क्या लिखा हुआ है। ही मोहम्मद crept and waits behind him ज़हीर। ज़हीर के पीछे, ज़हीर नाम का एक आदमी था, उसके पीछे छुप करके रसूलुल्लाह बैठ गए एंड हग्ड हिम, और पीछे से उसको हग कर लिया बैठ करके। द मैन सेड, आदमी ने कहा, गेट ऑफ मी, मुझे छोड़ दो। हु इज दिस, ये कौन है? देन ही टर्न्ड हिज हेड एंड डिस्कवर्ड दैट इट वाज द प्रॉफिट। तब वो पीछे मुड़ा और उसने देखा ये तो रसूलुल्लाह है जो पीछे बैठ करके उसकी टुई मुबारक को हग कर रहे थे। तो सो ही प्रोसीडेड टू पुश हिज बैक इनटू द प्रॉफिट्स चेस्ट व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो वो आदमी झुका और उसने अपनी तशरीह मुबारक रसूलुल्लाह के सीने से सटा दी। लो भैया ले लो। ये रसूलुल्लाह क्या कर रहे थे भाई साहब? इसको लौंडेबाजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे बाबर भाई आप? जी जी बाबर भाई आप अपना अनम्यूट करें। बात को या वैसे एक दोस्ताना बात को आप इतनी हवा में ले गए। आप कोई लॉजिक से बात करो भाई। मतलब कोई आदमी बातों में से बात है। आप अहमद साहब आप तो मौलवी मुझे लग रहे हो, कहीं मुसलमान तो नहीं हो आप भाई? हेलो, दो आदमियों के फिजिकल दोस्ताने को ही भाई बात तो सुनो भाई, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो भाई, बात सुनो। मैं 10 दफा ऐसे लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ मैच के दौरान ऐसे हक कर लेता हूँ, मजाक कर लेता हूँ। नमकीन पानी चाटते हैं उनका? मैं उसके साथ मेरी बात उस बात पे दोबारा आऊंगा, उस बात पे आता हूँ। अब उस बात को फिर बदलना नहीं। अपने दोस्तों को सुनिए ना, जब आपने दोस्तों को नमकीन पानी की बात सुनो, अभी आपको पसीना आया हुआ, बात तो सुन लो भाई, और लॉजिक की बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। अच्छा तो चाटते हैं आप? चाटते हैं आप? हाँ, तो उसके पस्तान भी अगर चूसे ना, अगर कोई किसी मर्द के पस्तान चूसे उसमें से भी नमकीन पानी आ सकता है। ये कोई बातों में से बात नहीं है, कोई ऐसा इल्जाम लगाओ जिसकी कोई लॉजिक तो समझ आए यार। आप तो मौलवी बन गए हो, कहते हैं भाई, मौलवी ऐसी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों में से निकालते हैं बात। अरे भाई ये तो भाई मेरी बात सुनो, क्या होती है? मैंने मेरी बात सुनो। नहीं, आप बिल्कुल मेरे हिसाब से ना, आप उन मौलवियों की तरह के मौलवी हो, उन मौलवियों से आपकी जान नहीं छूटी जो हरामजादे गधे ये समझते हैं कि ये हराम है, ये हलाल है। ये आप उस तरह की ज़हनियत के लोग हैं यार। मैं तो आप लोगों को अकल वाला बंदा समझता था। तो मतलब आप कैसे एविडेंस ला रहे हैं यार, उसमें से ये निकला, फलाना निकला। हमारी मौलवियों से जान नहीं छूटी जो हरामजादे। एक हमारी सूरत है पहली, उसमें से 100 फिके बन गए हैं उनके। आप तो ऐसी बातें भाई कर रहे हो। जी मैंने एक बार एक मौलवी साहब से पूछा था कि जनाब हराम क्या कहेंगे। मैं उस टाइम बड़ा छोटा था, मैंने 8 क्लास में। आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत आदमी है। क्या कह रहे? What he said? का नहीं है। तो मेरी बात सुने, मौलवी साहब, अरे बोलने तो दो। तो मैंने एक बार एक मौलवी साहब से पूछा था, मैं 8 क्लास में था, कि मौलवी साहब हराम क्या क्या है। उन्होंने कहा था सब हराम है। वो उस मौलवी का दिमाग खराब, उसने कौन सी एवोल्यूशन पढ़ी, कोई होम्योसैपियन की किताब पढ़ी और दुनिया के लोग जानता होगा। वो तो अभी तक अपना वो सूरज के इर्द गिर्द घूमना नहीं जानता होगा। Why don't this man listen, man? जैसे इल्म वाले बंदे से पूछे ना। क्या करे? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे सर, आपकी अपनी स्ट्रीम में बोले आप, हम तो चुप बैठे हैं। हम हमारी औकात सर, आप भाई यही बोल रहा हूँ। हम नहीं, मेरी बात सुने। हमारे लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है, साइंस से बिल्कुल पर्दा है इनका। ये तो ये साबित नहीं आपके सामने कर सकते दिन रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे चेंज होते हैं। आपके अल्लाह को पता है? मुझे लगता है भाई मैं चला जाता हूं। नहीं बाबर भाई, आपके अल्लाह को पता है? अल्लाह को पता है, उसने तो कायनात बनाई सारू, उसने कायनात बनाई, वो कम नहीं। तो जब कायनात बनाई है अल्लाह ने, अब सुनिएगा एक एक करके चलते हैं। जब अल्लाह ने कायनात बनाई है तो उसने पहले जमीन बनाई थी कि पहले कायनात बनाई थी? आसमान, सितारे, सैयारे, प्लेनेट, ये पहले बनाया था कि पहले जमीन बनाई थी?
जी जी, अकॉर्डिंग टू कुरान तो पहले जमीन बनाई थी। अच्छा, तो ये सही है, ये साइंटिफिक मानते हैं आप इसको? जी जी, ये साइंटिफिक नहीं है। तो फिर आपका अल्लाह तो खुद अनसाइंटिफिक साबित हो गया आप ही के क्लेम के मुताबिक। देखिए, बड़ी प्यारी बात की, मैंने इसे इसलिए माना, अगर मैं इसे यहीं रद्द करना शुरू कर देता ना तो आपकी और मेरी बात ना होती। देखिए, कुछ चीजें जाहल लोगों जैसे हमारी है, मौलवियों को समझ आने के लिए पहले जमीन ही बतानी है। उन्हें कायनात को आज तक नहीं पता चला, जब सारी स्पेस में चीजें चली गई, हबल दूरबीन इतनी तस्वीरें खींच के भेज रही है, वाजर 2 चली गई, अब बताएं हमारे किसी मौलवी को इस बारे में पता हो? वो गधे हैं वो। तो अगर आप ही के लॉजिक के मुताबिक अगर साइंस भी ऐसा ही करता कि वो भी लोगों को उतनी ही नॉलेज या मालूमात देता जितने लोग सोच सकते हैं, तो फिर आज आप इस थ्योरी को सही या गलत समझ पाते कि जमीन पहले बनी थी सवाल ही आसमान? मेरे भाई, सवाल ही गलत है। आप साइंटिफिक सोच के अप्रोच के बंदे ही नहीं है। साइंस कौन सा कोई मौलवी है या कोई मजहब है? साइंस तो एविडेंस पे चलती है, जिसका जितना उसके पास होगा वो उसको उसके मुताबिक बात करेगी। वो कौन सा आपके और मेरे थ्योरम पे चल रही है? मजे की बात तो ये है ना बाबर भाई कि इंसानी जो रिसर्च है वो अल्लाह की जो जी जी, खबर है या अल्लाह का जो इल्म है या अल्लाह की जो ताकत है उससे भी बहुत बेहतर है और बहुत बरतर है और बहुत आगे है। बेशक आपके अल्लाह बेशक, की जो सोच है वो इंसान की बिल्कुल सोच ऐसे ही से है। भी पीछे रह गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब इसके ऊपर जवाब दूं? जी 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 वहां बिल्कुल। लिखा कुछ नहीं होता, ये आज की साइंस उसमें घुसेड़ते हैं और आप जैसे लोग समझते हैं अल्लाह ने कह दिया है। आप मुझे कुरान के कैसे हिस्से से ये बात तो साबित करके दिखाएं भाई। अल्लाह क्या ताला ने साबित करके फरमाया कि दिखाऊं? मैंने जमीन को बिछोना बनाया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जमीन को बिछोना बनाया। हमारे हरामजादे मौलवियों ने क्या कहा? जमीन बिछोना, बिछोने का मतलब होता है खड़ी है, जमीन खड़ी है, उस पर एक किताब लिख दी गधों ने। अच्छा, अब नहीं बात वहां अभी लिखा यहाँ हुआ है कायनात जमीन की बिछोना है। खलकियत की हो रही है। देखे देखे अभी मेरी अभी बात बात सुने। यहाँ कायनात की खलकियत की हो रही है जनाब, अभी बिछोने की बात नहीं जी हो जी, रही ना, मैं जमीन की कायनात बात हो मैं रही है। वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ भाई, मेरी बात सुने, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जो चीज जितनी कुरान में बयान की हुई है ना, उसमें अपनी बहन के रिश्ते जो दिए हुए ना हमारे मुफस्सरीन ने आज की साइंस के साथ मुताबिक, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। देखे, वो किताब है, उसमें किस्से हैं, कहानियां हैं, मुख्तलिफ तरीका से इंसानों को एड्रेस किया गया, कैसे आपने खाना पीना, आपने मतलब कहाँ से शेव करनी, कहाँ से नहीं करनी, क्या हराम है क्या बस साइंस को तो उसमें किसी भी दर्जे में एड्रेस ही नहीं किया गया। और लिखने वाले ने लिखा है, कुरान का जो सबसे बड़ा दाई खुदाए बुजुर्गो बरतर है, उसने लिखा है कि ये किताब आपको यानी क्या कहते हैं, किताब हिदायत है। किताब साइंस तो उसने लिखा ही नहीं। वो तो हमारे गधों ने ऐसे किया है भाई। हमारे अंदर को ठीक है, गधे तो पैदा आप ये हो कह गए रहे जिन्हें थे, साइंस अभी के आप साथ, कह रहे थे बाबर मैं भाई, बताता हूँ, साइंस के साथ दुश्मनी थी। अरे सुने तो, साइंस अरे जो जनाब नई मेरे डिस्कवरी लेके जनाब आती उनको मेरे हजम भाई नहीं होती सुने थी। तो, मुझे भी तो बोलने दें, सुने। बताएं आप अभी ये कह रहे थे कि ये तो बताएं भाई। मौलवियों की अपनी किताबों में है, मौलवी अपनी बातें करते हैं, उनकी गलती है, ठीक है चलें। जी जी लेकिन जी 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 जी, आप ये कह रहे थे कि कुरान कुरान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको मुझे कुरान से दिखा दें, तो ये लें आपके, मैंने कुरान से दिखा दिया, आपके सामने कुरान रख दिया मैंने, क्या पढ़ लें दिखाया आप, आपने यहाँ भी वही कुरान चीज से? रखी हुई है, ये क्या आप अपनी क्या आप स्क्रीन देख बोले जरा? लीजिए। मैं मोबाइल पे हूँ इसलिए मैं इसे देख नहीं सकता। आप बोले, मैं आपको मानूंगा, मैं ऐसे जेन्युइन आदमी आपको मानता हूँ। बताएं उसका तर्जुमा करके। ठीक है, तो आप रुकेंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, मैं बोल पाऊंगा, जब आप रुकते ही नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा? सारा मैं अब आप रुका ही सुनो, हुआ हूं, जो मर्जी कर लो। लेकिन तुसी तक सिद्धार्थ कितने भी भाई नहीं रुकदे, सुनते ही नहीं सिद्धार्थ हो भाई तुसी। हाँ जी अली भाई। मुफस्सिर को ये सर नहीं मैं मानते रुक इनसे गया पहले? हूँ, आप बताएं, मुफस्सिर को हुक्म करें। मुफस्सिर को ये नहीं मानते इनसे पहले पूछ ले, मुतरज्जिम को मानते हैं? भाई मैं मानता हूँ, क्यों नहीं मानना। मुतरजम ने तो बताना है चलिए अरबी में क्या मानते लिखा हैं, है, उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है। शुक्रिया शुक्रिया। ये आपके सामने सूरह फुस्सिलत, सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 9 से 12 तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ये बता जी जी, रहा है वो कि पढ़े। उसने कायनात को किस सीक्वेंस में और कब कब और कैसे बनाया। यहाँ पे क्या? अल्लाह हाँ जी। नौ में कहता है, आप कह दीजिए क्या तुम इस अल्लाह का हम्म इनकार करते हो और तुम इसका शरीक हम्म मुकर्रर करते हो, जिसने 2 दिन में हम्म जमीन पैदा कर दी और सारे जहानों हम्म, का परवरदिगार वही है। ये हो गया 9। इसके जी बाद 10 में जी। कहता है, और हम्म, इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए, यानी कि ठोक दिए, ताकि जी ये जी। जमीन उड़ ना जाए, और इसमें बरकत रख नहीं दी, नहीं, बस बस और यही तक रहे इसमें ना, उड़ ना जाए, आपने खुद डाला है ना।
उसने वो कहा मैंने एक्सप्लेनेशन हाथ में आपको डाल दिए, मिलेगा, बस गल खत्म होगी। एक्सप्लेनेशन आप में एक्सप्लेन मिलेगा। कर रहे हैं ना, उससे ना करें यार, आप मोमन ना ओके, बने। मैं आपकी ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड पहले मेरी बात सुन ले, रुक जाए, पहले अपना माइक म्यूट करें। आपको इससे मसला है कि वो उड़ ना जाए या वो हिल ना जाए, तो मैं कुरान की आयत सूरह अंबिया की आयत 44 नंबर पढ़ के आपको अभी ये चीज भी दिखाऊंगा कि अल्लाह कह रहा है कि उसने जमीन और आसमानों को थाम रखा है कि कहीं ये हिल ना जाए। ठीक है सर, तो वहां भी ये चीज मिलेगी आपको, वो सब चीज मैं दे दूंगा। मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान जब कहता तभी कहता हूँ। चले, फिलहाल एज इट इज जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ देता हूँ, आपकी बात को बड़ी करते हुए। और इसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी, और इसमें रहने वालों के लिए गिजाओ की तजवीज भी इसमें कर दी, सिर्फ 4 दिन में। अब 2 दिन में जमीन बनाई, उसके बाद 4 दिन में इसके अंदर पहाड़ गाड़े, खाने पीने की चीजें पैदा की।